Praise Lord, brothers. Let us praise the Lord. Lord, praise the Lord. सबको जय मसीह। Brother CB John. Brother CB John. Yes, brother. Yeah, Praise please start the prayer. Okay, brother, please. Almighty God, our gracious heavenly living Father, we bless you, Lord, for this wonderful day you have added to our life. What a blessing to know that you are our loving Father who tenderly caring for your dear ones always with all the heavenly resources and with earthly blessings. We thank you, Father, for the fellowship of saints and fellowship with everyone who serves you, loves you, worship you. Yes, Lord, this is our privilege to know we can come to your throne of grace at all time without any prior appointment and with all our needs and all our aspirations and ambitions and for guidance and for your love, for your grace, for your peace, for your joy in our life. We thank you, Father. This day is a special day for us to gather as the church to pray for the church as well as for each one of us, for our needs. And it is our joy to know that our God is the one who is able to supply all our needs according to the riches and glory through Christ Jesus, who is our Lord. We thank you, Father. Thank you, Father, for this wonderful opportunity where we could gather. Even you have given us a small number quorum, 2 or 3 are gathered, in the midst of them am I, you said, Lord. And when we have come together today, speak to us, Lord, from your word and guide us our thoughts and our ways so that we will be taught to pray according to your blessed will and in the Spirit of God, so that whatever words are uttered or even our sighing or our understanding of your holy presence, Lord, we are not worthy to come to you, but you have considered us in our low estate, making us your pleasant children, children who pleasing you. And that is only our desire, Lord. This day forth, we pray that you lead us and guide us. Thank you, Lord, for all the blessings of the past. And we prayed and received, and in more than what we prayed, you have supplied all our needs according to your promises, Lord. We thank you, Father. We thank you for each one who has gathered and others, those who are in your counting, may come faster and join the fellowship in the prayer. We thank you, Lord. We have no other goal. There's no other goal in our life. There's no other way we want to live in this world today and the rest of our life than your greatness be understood and your goodness may be received with gratefulness, with a thankful heart, that we'll always glorify your name through our life here. We pray, Lord, all our prayers are going to be presented through the Master, our Lord Jesus. We know it will never be despised, never be discarded. You will always give the right answers in the right time with your glory, Lord. We thank you, Father. We trust you for all good things to come. In Jesus' most precious name we pray. Amen. आमेन। आइए हम लोग एक स्तुति गाएंगे। सॉन्ग नंबर हिंदी में 554 554 एंड तेलुगु में 330। हिंदी में 401 और तेलुगु में 564। हिंदी में 401 है और तेलुगु में 564।
आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। कोई खूबी न लिया कर बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी न लिया कर बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकामे जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकामे जफाएं की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हम दोष न हम गाते हैं, हम दोष न हम गाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आइए हम लोग जाने से पहले वचन को हम थोड़ा ध्यान बंद करेंगे, फिर हम प्रार्थना में प्रवेश करेंगे।
मेरे साथ खोलिए लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय। द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 1। लूका का किताब उसका 1 अध्याय उसका 13 वचन मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। द गॉस्पल लूक चैप्टर 1 वर्स 13। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यूहन्ना रखना। परमेश्वर के पढ़े हुए वचन को आशीष करे और हम सबों को प्रार्थना के लिए सब्र के समय प्रभु तैयार करें। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी विश्वास योग्य पिता परमेश्वर, हृदय से धन्यवाद देते हैं रात भर के जीवन में प्रभु आपने अच्छी नींद दिया, थकावट को दूर किया और आपका कृपा हुई हमारे जीवन में एक दिन को ऐड करते हुए नया सवेरे को दिया। और प्रभु जी सवेरे के समय में एक बार फिर मंडली के नाई मिलते हुए हमें प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी आपने हमें प्रभु जी ऑनलाइन में आपने हमें इस सहायता किया, धन्यवाद देते हैं। और प्रभु सवेरे के समय में आपकी स्तुति के द्वारा आपके नाम को ऊंचा सराहने के लिए प्रभु आपने अनुग्रह दिया। प्रभु जी हृदय से धन्यवाद देते हैं। अभी हम प्यारे पिता परमेश्वर प्रार्थना में जाने से पहले जो वचन के भाग को हमने मनन किया, हमने पढ़ा है, उसमें प्रभु आपकी भारी आशीष को हम चाहते हैं और सवेरे के समय में आपके वचन के द्वारा हमसे मुलाकात करें और हमें प्रार्थना करने के लिए तैयार करें। मैं तुच्छ को भी प्रभु आपके हाथों में सौंपते हुए विशेष आत्मा की अगुवाई को, अनुग्रह को चाहते हुए और हमारी सेवकाई को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हुए आशीष चाहते हुए हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। पिता सुनने और ग्रहण कीजिए, आमीन। ये वचन के भाग को हमने पढ़ा है। यहाँ पर लूका का जो लिखने वाला यहाँ पर एक बात को यहाँ पर कहता है, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जकरिया को प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। यद्यपि हमारे जीवन में हम जब अपने आप को हम देखते हैं, हम कई प्रकार की कमी घटी से हम लोग घिरे हुए हैं। हमारे जीवन में जो परमेश्वर की जो अपेक्षा में हम जो खरा उतरना है उसमें हम खरा नहीं उतर पाते हैं। हमारे में कमी घटी है, हमारे में कई प्रकार की कमजोरियां हमारे जीवन में है। हम दुर्बल हैं, हम कमजोर लोग हैं, लेकिन फिर भी हम जब अपनी दुर्बलता में, कमजोरता में हमारे प्रभु के पास में सच्चे मन से, सच्चे हृदय से और खरा हृदय के साथ में और विश्वास के साथ में हम प्रभु के चरण में हम जब आते हैं, व्यक्तिगत तौर पे हो, पारिवारिक तौर पे हो या मानसिक तौर पे हो, हम जब हृदय की गहराई से प्रार्थना करते हैं तो आज भी हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। ये बात का अनुभव हमने किया है, हम सबों ने किया है हमारे व्यक्तिगत जीवन में। इसीलिए आज भी सवेरे के समय में मंडली के नाई उसी विश्वास के साथ में, उसी धैर्य के साथ में और उसी आदर के साथ में हम जब प्रभु के साथ पास में आएंगे, हम प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना भी निश्चय सुनेगा। क्योंकि यहाँ पर जकरिया की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना और हमने देखा कि जकरिया को परमेश्वर ने, जकरिया और एलिशिबा को एक संतान के रूप में उनको परमेश्वर ने उसको दान दिया है। उस संतान का नाम क्या था? यूहन्ना। और वही यूहन्ना का नाम जो है, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का नाम से वो क्या हो गया? प्रख्यात हो गया। लेकिन प्रार्थना के समय में या प्रार्थना के सुनने के पीछे कुछ परमेश्वर का हमारे जीवन से अपेक्षा करता है, कुछ शर्तें हैं। वो हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु हमारा चाहता है कि उस शर्त को हम पूरा करें। परमेश्वर की जो प्रार्थना हम अगर पूरी बाइबल में, पूरी परमेश्वर के वचन में अगर हम पढ़ेंगे
प्रभु ने, परमेश्वर ने जहां जहां प्रार्थना सुना, जहां जहां प्रभु ने प्रार्थना को उत्तर दिया, उसके पीछे कुछ उद्देश्य, उसके पीछे परमेश्वर का कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम है। यदि हम उसको पालन करेंगे ही तो हमारा प्रार्थना प्रभु सुनता है। इसीलिए यहाँ पर भी कुछ नियम को हम देखते हैं हमारी प्रार्थना को सुनने से पहले। पहली बात यहाँ पर हम देखते हैं कि जकरिया का मतलब होता है कि परमेश्वर स्मरण करता है, या गॉड रिमेम्बर, परमेश्वर याद करता है। और उनकी पत्नी एलिशिबा का अर्थ है कि एक शपथ, या परमेश्वर का जो शपथ करके उस बात को हम यहाँ पर देखते हैं। ये दोनों पति पत्नी जकरिया और एलिशिबा उस परमेश्वर के भवन में आने से पहले, उसके प्रार्थना सुनने से पहले, कुछ पवित्र शास्त्र में पवित्र आत्मा के द्वारा कुछ बात के उल्लेख यहाँ पर करता है, जो आज हमारे और आपके जीवन में भी ये शर्त है, ये कंडीशन को हमको पूरा करना अनिवार्य है, नहीं तो हमारी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है। पहली बात यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो कि जकरिया और एलिशिबा दोनों पति पत्नी, ये पति पत्नी का संबंध में, पति पत्नी का जो सेवकाई है, इस बात को मैंने अनुभव किया है। मेरे जीवन में इस बात को मैंने अनुभव किया, और बहुत सारे भाई लोग ने भी अनुभव, हमारे परिवार ने भी अनुभव किया होगा। प्रियो, जब से मेरा जीवन में 24 तारीख मई को 2017 को मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट से पहले मैं हमेशा केवल अकेला ही प्रभु के जो सेवकाई के लिए, मैं चाहे पालघर हो चाहे कहीं भी हो, मैं जाता था मैं। और मैंने कभी भी इस बात को अहमियत मैंने नहीं दिया मैंने। लेकिन जब मेरा 24 तारीख मई को द्वारा एक्सीडेंट, मेरा उसमें मेरा घटना घटने के द्वारा, जब उसमें से मैं रिकवरी होने के द्वारा, जब मेरे साथ में मेरा वाइफ, मेरा पत्नी मेरे साथ साथ में चलने लगा, और हर का कहीं भी मैं जाता था, कहीं भी मैं जाता हूँ आज भी, जब मेरा वाइफ मेरे संग संग में जाता है, तो इस बात को मैंने अनुभव किया है कि हमारी सेवकाई में, हमारी संगति में, हमारे विजिटिंग में, हमारी प्रार्थना में परमेश्वर बहुत एक आशीष को देता है। और पति पत्नी का जो मिलकर जब हम प्रभु की दाग के बारे में काम करते हैं, वो बहुत ही फलवंत होता है। इस बात को मैंने अनुभव किया है। यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो, जकरिया और एलिशिबा। जकरिया का मतलब परमेश्वर याद करता है, गॉड रिमेम्बर, और एलिशिबा का मतलब है ओथ, शपथ। ये दोनों के जीवन में कुछ खासियत को हम देखते हैं। पहली बात हम यहाँ पर पढ़ते हैं जकरिया, लूका के किताब 1 अध्याय का उसका 6 पद के अंदर पहली बात वहां पर कहता है, वे दोनों। प्रियो, कितनी बड़ी बात है, परमेश्वर के भवन के अंदर परमेश्वर की सेवा करने के लिए प्रभु के लोग के बीच में पहली बात यहाँ पर कहते हैं कि वे दोनों परमेश्वर के सामने, दोनों पति पत्नी के जीवन को, इसीलिए यहाँ पर इस बात को हमको समझना है हमारे जीवन के अंदर कि पति पत्नी जब प्रभु के काम के, प्रभु के कार्य में, प्रभु की सेवकाई में सम्मिलित होते हैं या सहभागी होते हैं, और मिलकर जब ऐसा काम करते हैं, तो प्रियो परमेश्वर का कार्य बढ़ता है, और परमेश्वर के आशीष को हमारे परिवार में भी, हमारे मंडली के अंदर भी, हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी उस बात को हम लोग अनुभव कर सकते हैं। तो पहली बात यहाँ पर हम देखते हैं कि वे दोनों परमेश्वर के भवन में जाते थे। प्रियो, आज हमारे पालघर में, बोईसर में कितने ऐसे परिवार हैं जो हम कंटिन्यू हम प्रार्थना करते हैं, उनके पति का उद्धार नहीं हुआ है, पत्नी का उद्धार हुआ है, पति का उद्धार नहीं हुआ है। और वे हमारे बहनें जो भी, और भी हमारी मंडली, बोरेली मंडली में भी है, हमारी जो बहनें हैं जिसका पति का उद्धार नहीं हुआ है, आप उनको पूछिए, आप उनको पूछिए कि उनका मन का पीड़ा, उनके मन के दुख कितना होता है। हमारे बोरेली मंडी में कई ऐसा परिवार है, हमारा बहनें हैं, पति का उद्धार नहीं हुआ है, या पति संगति में नहीं आता है ना, उनको पूछिए उनके जीवन में कितना बड़ा दुख है, कितना बड़ा तकलीफ है, कितना पीड़ा है। प्रियो, आज हम जो प्रियो प्रभु के बच्चे, जो हम पति पत्नी का उद्धार हुआ है, तो ये बात तो हमको समझना है, हम सब मिलके पति पत्नी जब प्रभु के चरण में, प्रभु के सेवकाई में हम आगे बढ़ते हैं,
तो परमेश्वर का कार्य बहुत ही बढ़ता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वे दोनों परमेश्वर के सामने क्या थे? वो लोग धर्मी थे। केवल पत्नी नहीं, केवल पति नहीं, दोनों, पति भी पत्नी भी, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। तो धर्मी की परिभाषा जो है, द राइचियस डेफिनेशन ऑफ द राइचियसनेस, जो धर्मी व्यक्ति का परिभाषा है, कुछ बातें मैं बताना चाहूंगा। मैं फटाफट में पढ़ूंगा वचन आपके सामने। धर्मी का जीवन कैसा होना चाहिए? हमें भी प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धर्मी बनाया गया है। हम और आप भी धर्मी है, इस बात को हमको जानते हैं। यदि मैं धर्मी हूँ, मैं अपने आप को धर्मी समझता हूँ, या मैं धार्मिकता के अनुभव को मैं करता हूँ, मेरा धार्मिकता का जीवन कैसा होना चाहिए? दो तीन बातें बताऊंगा मैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहला बात, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम और आप भी धर्मी ठहर चुके हैं। हम धर्मी हैं। तो प्रियो, आज हम प्रभु के सामने धर्मी के नए प्रार्थना करने से आने से पहले धार्मिकता का जो विषय, धार्मिकता का जो काम है, धार्मिक का काम क्या है, उसको हम थोड़ा देखेंगे। पहला पढ़ेंगे हम लोग नीति वचन की किताब, उसका 10 अध्याय, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 10। प्रोवर्ब्स की किताब, उसका 10 अध्याय, उसको हम पढ़ेंगे। सामी तेलुगु बोलता है उसको तेलुगु में। प्रीतो कर्म, उसका 10 अध्याय, सामी तेलुगु, उसका 10 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 21 वचन। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 21। धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है। पहली बात प्रियो, आज मैं धर्मी हुआ हूँ, प्रभु के लहू के द्वारा धर्मी ठहरा हूँ। आज मैं धर्मी हूँ, तो धर्मी का कार्य, धर्मी का धर्म, धर्मी का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, धर्मी का जो काम है प्रियो, आज हमारी वचनों के द्वारा, हमारे बोलने के द्वारा, हमारे कर्मों के द्वारा, हमारा सोच के द्वारा बहुतों का पालन पोषण होना चाहिए। क्या ऐसा मेरा जीवन है? सवेरे के समय में परमेश्वर हमसे बातें करता है। क्या आज मैं धर्मी हूँ? प्रभु यीशु मसीह की उस अमूल्य लहू से मैं धर्मी ठहराया गया हूँ। तो मेरा काम है, क्या मेरे वचनों के द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा, मेरे गवाही के द्वारा, मेरे बातों के द्वारा, मेरे चाल चलन के द्वारा क्या बहुतों का पालन पोषण हो रहा है क्या? यदि नहीं हो रहा है तो मेरी धार्मिकता, आज भी मैं उस धार्मिकता के लेवल में मैं नहीं आया हूँ। प्रियो, ये सबसे बड़ी बात है हमारे जीवन के अंदर। मैं धर्मी हूँ, आई एम राइचियस पर्सन। तो मेरे जीवन से, मेरी बातों से, मेरी कर्मों से, मेरे काम से, मेरी व्यवहार से, मेरे चरित्र से विश्वासियों के जीवन में, मंडली के जीवन में बहुतों का पालन पोषण होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रियो, आज मैं धार्मिकता के जीवन को मैं व्यतीत नहीं कर रहा हूँ। ये पहली बात हो गया। दूसरी बात हम पढ़ेंगे उसी का 11 अध्याय का, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 वर्स 23। 11 अध्याय, उसका 23 वचन मैं पढ़ता हूँ हिंदी में। धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई की होती है। दूसरी बात, महत्वपूर्ण की बात है प्रियो, अगर मैं धार्मिकता मैंने पाया हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता अगर मैंने पाई है, मैं धर्मी हो गया हूँ और रोमी की किताब के अनुसार मैं धर्मी ठहराया गया हूँ, तो दूसरा कार्य है प्रियो, मेरी लालसा, मेरी इच्छा हमेशा भलाई का काम करने का होना चाहिए। पहली बात, मेरी बातों के द्वारा, मेरी वचनों के द्वारा, मेरी कर्मों के द्वारा, मेरी चाल चलन के द्वारा लोगों का पालन पोषण होना चाहिए। और दूसरी बात है प्रियो कि मैं अगर धर्मी हूँ, धर्मी ठहराया गया हूँ, तो मेरे जीवन में हमेशा भलाई के काम करने की लालसा, भलाई के काम करने के लिए इच्छा होना चाहिए। ये धार्मिकता, ये धर्मी व्यक्ति का दूसरा गुण है। तीसरा भी हम देखते हैं जल्दी से, फटाफट तीसरा भी हम देखते हैं। उसी का हम पढ़ते हैं 12 अध्याय, उसका 26 वचन। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स 12 चैप्टर वर्स 26। धर्मी अपने पड़ोसी की अगुवाई करता है। प्रियो, हमारा जीवन, हमारा गवाही कैसा है?
मैं धर्मी व्यक्ति हूँ, धार्मिकता का जीवन में बिताता हूँ, तो मेरी धार्मिकता के जीवन के द्वारा मेरी पड़ोसी की अगुवाई, मतलब मेरी गवाही, जहां पर मैं रहता हूँ, जहां पर मैं काम करता हूँ, जहां पर मैं पढ़ता हूँ, जिस मंडली में मैं सेवकाई करता हूँ, प्रियो, मेरी गवाही कैसा होना चाहिए। इसीलिए ये बात हम आगे नहीं देखेंगे क्योंकि समय नहीं है। तो इसीलिए प्रियो, आज हमारे जीवन के अंदर मैं धर्मी हूं, जैसा वे दोनों पति पत्नी जकरिया और एलिशिबा धर्मी थे प्रभु के सामने, और ये गुण उनके जीवन में था, ये गुण उनके जीवन में था। इसको हम आगे हम देखेंगे इसको जानने के लिए प्रियो। इसीलिए हमारा जीवन के अंदर मैं धर्मी हूं, तो सबसे पहली बात है प्रियो, मेरा धार्मिकता का काम हमेशा होना चाहिए, नहीं तो हमारी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता है। तो पहली बात हम यहाँ पर देखते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में वे दोनों पति पत्नी जकरिया और एलिशिबा धर्मी व्यक्ति थे, ये पहला गुण। दूसरा गुण हम यहाँ पर देखते हैं, लूका का किताब 1 अध्याय का उसका 6 पद के अंदर ही, और प्रभु की सारी आज्ञाओं को, विधियों को मानते थे, उस पर चलते थे। यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रभु की सारी आज्ञाओं को और विधियों पर चलने वाला व्यक्ति, चलने वाला व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति का दूसरा काम है परमेश्वर के आज्ञा को, परमेश्वर के वचन को ना केवल सुनने वाला, ना केवल बताने वाला, मगर सबसे बड़ी बात है उसमें चलना चाहिए। हम लोग हमेशा लोगों को बताते हैं, वी ऑलवेज प्रीच, पर बहुत ही हम कम रीति से हमने जो बताए गए वचन पर हम चलते हैं प्रियो। सोलापुर में भाई पॉल जैकब ऐसा वचन दे रहा था, है ना, 1 कोरिन्थी 9:27 का आधार बना के दे रहा था कि हम प्रचारक जो है, प्रचार हम लोग करते हैं, हम लोग वी प्रीच मेनी थिंग्स, बिग थिंग्स, बट उसमें चलने के लिए हम लोग बहुत बार चूक जाते हैं, हम चूक गए, हम लोग हैं। धर्मी वो व्यक्ति हैं जो आज्ञाओं के ऊपर, विधियों के ऊपर ना केवल सुनता है, ना केवल लोगों को सिखाता है, बोलता है, मगर सबसे बड़ी बात है चलने वाला व्यक्ति। और यहाँ पर पवित्र आत्मा गवाही देता है जकरिया के बारे में, एलिशिबा के बारे में, वे दोनों बोथ वर राइचियस, और दोनों के दोनों परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर, विधियों के ऊपर वो लोग चलते थे, वो लोग। ये हो गया दूसरी बात। तीसरी बात हम आगे पढ़ेंगे, लूका की किताब उसका 1 अध्याय उसका हम पढ़ते हैं 9 वचन, बुक ऑफ लूक चैप्टर 1 वर्स 9। तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में धूप जलाए। प्रियो, दोनों व्यक्ति पति पत्नी धर्मी थे, आज्ञाओं को विधि पर चलने वाले व्यक्ति थे। और तीसरी बात यहाँ पर देखते हैं, उनका प्रार्थना का जीवन था, their prayer life was strong। दोनों याजक पति पत्नी दोनों प्रभु के भवन में आते थे, प्रभु के घर में आते थे और धूप जलाते थे। वो लोग धूप जलाते थे, मतलब क्या है उनका, दोनों का प्रार्थना का जीवन। कितनी बड़ी बात है, देखिए यहाँ पर प्रियो, एक पति पत्नी का सुंदर सा रूप आज हम यहाँ पर देखते हैं कि ये दोनों धर्मी थे, आज्ञा पर चलने वाले थे, और तीसरी बात है उनका प्रार्थना का जीवन थे, धूप जलाते थे मंदिर में आके वो लोग। दैट मींस प्रार्थना का जीवन, क्योंकि वचन के अंदर हम जहां पर भी धूप की बात को हम पाते हैं, वो प्रार्थना को दर्शाता है, वो प्रार्थना का जीवन को दर्शाता है वो। इसलिए दोनों के जीवन में प्रार्थना का जीवन था प्रिय भाई बहन। और ये हो गया तीसरी बात। चौथी बात हम बड़ो वहां पाते हैं धर्म उसी का लूका की किताब 1 अध्याय उसका 13 वचन, द बुक ऑफ लूक चैप्टर 1 वर्स 13। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो। सबसे बड़ी बात है, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ दे फियर गॉड। दोनों पति पत्नी परमेश्वर के भय को मानते थे वो लोग। जकरिया को स्वर्गदूत वापस, हे जकरिया, तो भयभीत न, फियर नॉट। दैट मीन्स वे दोनों प्रभु का डर मानते थे, प्रभु का भय मानते थे। प्रियो, आज हमारे जीवन में प्रभु का भय कितना है, प्रभु के लिए हमारे अंदर डर कितना है प्रिय भाई। लेकिन ये आज हमारे जीवन में ये हकीकत ये है,
हम जितना हम संसार के लोगों से, संसार के अधिकारियों से हम डरते हैं, उतना डर हम प्रभु के नहीं डरते हैं। हमारे जीवन में आज प्रभु का डर है ही नहीं है। मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, हमारे मंडली के जीवन में, हमारे विश्वासी के जीवन में प्रभु का डर है ही नहीं प्रिय भाई। लेकिन यहाँ पर दूत तो यहाँ पर गवाही देता है, हे जकरिया तू भयभीत न हो। तो प्रियो, परमेश्वर का डर हमारे जीवन होना चाहिए। यहाँ पर हम 4 बातें देखा हमने। पहली बात, वे दोनों धर्मी थे, आज्ञा पर चलने वाले व्यक्ति थे, प्रार्थना का जीवन था और प्रभु का डर मानता था। लेकिन एक बात अगर हम देखते हैं, देखिए उसी को पढ़ते हैं, लूका के किताब 1 अध्याय का, उसका हम पढ़ते हैं 7 वचन, बुक और 7। उनके कोई भी संतान न थी, क्योंकि एलिसेबा बांस थी। प्रियो, दोनों पति पत्नी प्रभु के सामने धर्मी थे, प्रभु की आज्ञा पर चलते थे, प्रार्थना का जीवन था और प्रभु का डर मानते थे। लेकिन कमी उनके जीवन में क्या था प्रियो? कष्ट क्या था? पीड़ा क्या था? समस्या क्या था? उनके पास में संतान की सुख नहीं थी। यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर कि संतान की सुख तो नहीं थी। यहाँ पर एलिसेबा बांस थी। बांस जो शब्द है ना, बहुत कठोर शब्द है ये। हाँ, एक स्त्री के लिए बांस का शब्द, बैरन का शब्द है ना, बहुत ही हार्ड वर्ड है वो। कोई भी स्त्री, कोई भी माताएं, कोई भी स्त्री, कोई भी हमारी बहनें इस बांस शब्द को पसंद नहीं करता है। ये बहुत ही कठोर शब्द है ये। इस बांस का शब्द में वहां पर एक अपमान का शब्द हम पाते हैं। लोग उनको घृणा करते हैं, लोग उनको द्वेष करते हैं, लोग उनको उपहास उड़ाते हैं, खट्टा करते हैं, अरे तू बांस है, तू तेरे संतान नहीं होता है, तू डायन। कई प्रकार की बातें होती है। जो बांस जो शब्द है ना, ये स्त्रियों के लिए बहुत ही हार्ड वर्ड है, बहुत ही कठोर वर्ड है ये। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, एलिसेबा बांस थी। वो कितना दुख था उनके जीवन में। मंदिर में जाते होंगे वो लोग, दोनों पति पत्नी, लोग कहते होंगे उनको, अरे तू तो बांस है, तू मंदिर में क्यों आता है, तेरा प्रार्थना अभी तक सुना क्यों नहीं है। लोग कई प्रकार की बातें करते होंगे, अलग अलग बातें, क्योंकि हमारे संसार में अलग अलग लोग अलग अलग बातें हम सुनते हैं। प्रियो, इसीलिए यहाँ पर हम इस बात को हम जानना है, ये दोनों धर्मी होने के बावजूद भी जब प्रभु के घर में जाते थे प्रार्थना करने के लिए, वो लोग उनको ठट्टा करते होंगे, लोग उनको ताने मारते थे होंगे, लोग उनको हंसी उड़ाते थे होंगे। लेकिन इन सारी बातों को बिना परवाह किए ये दोनों अपने काम में व्यस्त थे, अपने काम में विश्वास योग्य थे। इसीलिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर कहता है कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। प्रियो, जकरिया की प्रार्थना, एलिसेबा की प्रार्थना प्रभु ने सुन लिया। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ यहाँ पर, मैं उसको तो जल्दी खत्म करता हूँ मैं। 1 अध्याय का हम यहाँ पर हम पाते हैं 22 वचन में, 1 अध्याय का 22 वचन में, जब वो बाहर आया तो उसने बोल न सका, अतः वे जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है, और वह उनसे संकेत करता रहा और वह गूंगा रह गया। यहाँ पर एक बात को हमको सीखना है, जकरिया ने परमेश्वर का दूत के बातों के ऊपर विश्वास नहीं किया, उसके ऊपर शक किया, डाउट किया, और जकरिया गूंगा हो गया। जकरिया बोल नहीं सका जकरिया। लेकिन हम इसी के आगे पढ़ते पाएंगे मरियम के बारे में। मरियम के पास जब दूत आता है और दूत उसको समाचार देता है कि हे मरियम, तो भयभीत न हो, परम प्रभु का छाया तेरे पर आया हुआ है, तो गर्भवती होगी, एक बालक तुझसे जन्म होगा, उसका नाम यीशु रखना। जब ये बात मरियम को बोलती है, मरियम ने भी विश्वास नहीं किया। मरियम ने बोला, अरे प्रभु कैसे हो सकता है, मैंने तो अभी तक पुरुष का मुंह दिखाई नहीं है। यहाँ पर एक बात हम सीखते हैं, मरियम ने भी अविश्वास किया, जकरिया ने भी अविश्वास किया, लेकिन मरियम गूंगी नहीं हुई, जकरिया गूंगी हुई। क्यों गूंगी हुई? क्यों मरियम गूंगी नहीं हुई? क्यों जकरिया गूंगा हुआ? ओ प्रियो, इस बात को हमको सीखना है। यहाँ पर हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर कभी गलती नहीं करता है, परमेश्वर कभी भूल नहीं करता है, और परमेश्वर का वचन तो पक्का, कभी एकदम परफेक्ट वचन है। जकरिया इसलिए गूंगा हो गया क्योंकि अगर हम बाइबल में आगे हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब के अंदर, क्योंकि एक बांझ औरत ने
बच्चे को जन्म दिया है। सारा भी बांस थी, जन्म दिया है। ऐसा कईयों स्त्री को हम पाते हैं बाइबल के अंदर कि वो बांस थी, बच्चे उनको जन्म नहीं होता था, लेकिन प्रभु की अनुग्रह से वो बच्चा पैदा हुआ, संतान का सुख मिला। ये बात जकरिया भी जानता था। जिस परमेश्वर ने सारा की कोख खोला, मेरी पत्नी एलिशबा कोख भी खोल सकता है, जानता था जकरिया। लेकिन उसने क्या किया? अविश्वास किया और बोला कैसा हो सकता है प्रभु ये, इसीलिए वो गूंगा बन गया वो। लेकिन मरियम, इतिहास के अंदर, बाइबल के अंदर ऐसा कोई घटना नहीं है जहाँ पर कन्या कुमारी ने जन्म दिया हो। ये कहीं भी जिक्र नहीं बाइबल के अंदर, पहली बार हो रहा है ये, अद्भुत बात हो रहा है ये। जिसने पुरुष का मुंह दिखाई नहीं है, कन्या कुमारी है, उसको गर्भ हुआ, बाइबल में कहीं रिकॉर्ड नहीं है। तो इस बातें प्रभु हमारे मरियम के ऊपर सहानुभूति करता है कि ये बातें कहीं रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए मरियम ने अविश्वास किया, ये पॉसिबल ही नहीं है ये। इसलिए मरियम के ऊपर ऐसा कोई प्रकार के वो नहीं आया। प्रियो, आज अगर हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सारा की को खोल सकता है, तो ऐसा परमेश्वर हम जब ये 4 गुण को लेके आते हैं, धर्मी, आज्ञा पर चलने वाले, प्रार्थना के जीवन और प्रभु का डर जब मानते हैं, तो प्रियो हमारी प्रार्थना भी प्रभु निश्चय सुनता है। प्रभु सहायता करे हमारे जीवन के अंदर, ऐसे विश्वास के साथ में हम प्रभु के सामने आए, हमारे प्रार्थना प्रभु निश्चय सुनता है। इस छोटे से वचन में प्रभु आशीष करे। ब्रदर गाब्रियल।